নমস্কাৰ মই প্ৰণিতা লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা চৰ্চিত বিষয় মুছলমানৰ পক্ষত অনবৰতে থিয় হৈ আছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাজপথত নামাজ পঢ়াৰ পক্ষত থিয় হৈছে গৌৰৱ গগৈ তেওঁ ক'লে ৰাজপথত নামাজ পঢ়াত বিজেপিয়ে বাধা দিয়ে কিন্তু ইয়াত বাধা দিয়াৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে মুছলমানসকলে তেওঁলোকৰ এই অধিকাৰ তেওঁলোকৰ এই স্বাধীনতা সেই কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিব নালাগে বুলি ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু সদনৰ মজিয়াতে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে মুছলমানৰ পক্ষতে থিয় হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী মুছলমানৰ থিয় হৈছে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত সবিচাৰে লৈ আহিব বিচাৰিছো এই খবৰটো কি কৈছে সাংসদগৰাকীয়ে মুছলমানৰ পক্ষত থিয় দি লোকসভাৰ মজিয়াতে মাত মাতিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণ সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে শুনিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মতেই মই লোকসভাৰ মজিয়াত ভাষণ ৰাখিছো বুলি ক'লে যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকীয়ে ভাৰতৰ প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোকৰে অধিকাৰ আছে এই কথা উল্লেখ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু গতিকে মুছলমানসকলৰ অধিকাৰ কিয় থাকিব লাগিব ওয়াকফ সংশোধনী আইন ভাৰতীয় সংবিধান বিৰোধী সেই কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ ওয়াকফৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অনবৰতে মাত মাতি গৈছে পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁ এই সন্দৰ্ভত মাত মাতি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে এই আইনৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে সংবিধানক দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে বুলি ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মুছলমানক লৈ ভ্ৰম বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে সেই কথাও স্পষ্ট কৰি দিছে সাংসদগৰাকীয়ে ভাৰতীয় সমাজক ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া হৈছে মুছলমানক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে এই বিল অনা হৈছে বুলি কৈছে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অনবৰতে মুছলমানৰ বাবে মাত মাতিছে বিজেপি চৰকাৰে ঈদৰ সময়ত ৰাজপথত নামাজ পঢ়িবলৈ দিয়া নাই মুছলমানক এয়া কেনেকুৱা কাম কৰিছে বিজেপিৰ কেইজন সাংসদ মুছলমান সেই কথা প্ৰশ্ন কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে ক'লে যে তেওঁলোকেতো নিজৰ অধিকাৰ আছে এয়া মুছলমানৰ পৰা কিয় বিচৰা হৈছে ধৰ্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বুলিও ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সংবিধান বিৰোধী তেওঁলোকৰ পৰা ধৰ্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচৰা হৈছে এই কথা কৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে তেওঁ ক'লে যে ওয়াকফ বোৰ্ডক দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে ওয়াকফত যিহেতু 40টা সংশোধন আনিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বোৰ্ড দুৰ্বল হ'ব বুলি সকলোৱে আলোচনা কৰি আছে আৰু এই আইন সেইবাবে অনা হৈছে যাতে বোৰ্ডখন দুৰ্বল কৰিব পৰা যায় উল্লেখ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মাটি কাঢ়ি অনাৰ বাবে আইন অনা হৈছে বুলি কৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মুছলমানসকলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যুঁজ দিছিল মুছলমান সমাজতো স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছে মুছলমানসকল ভাৰতীয় নহয় নেকি চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত মুছলমানসকলে বলিদান দিছিল সেই কথা উল্লেখ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে 2 লাখ উলেমা স্বাধীনতাৰ বাবে শ্বহীদ হৈছিল বুলি ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ইতিহাস সোঁৱৰাই দিছে সাংসদগৰাকীয়ে জিন্নাৰ 2 ৰাষ্ট্ৰৰ নীতিৰো বিৰোধিতা কৰিছিল মুছলমানসকলে গতিকে এই কথা কোনেও পাহৰি যাব নালাগে সকলোৱে মনত ৰখা উচিত আৰু সেই মুছলমান লোকৰ মাজতে বিভেদ আনিব বিচাৰিছে এতিয়া বিজেপিয়ে যি মুছলমানে বিদ্ৰোহত তেওঁলোকে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যুঁজ দিছিল মুছলমানৰ পক্ষত থিয় দি লোকসভাৰ মজিয়াতে মাত মাতিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু ভাৰতীয় সংবিধান মতে মই লোকসভাৰ মজিয়াত ভাষণ ৰাখিছো বুলি উল্লেখ কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে আৰু ৰাজপথত নামাজ পঢ়াৰ পক্ষত গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰাজপথত নামাজ পঢ়াত বিজেপিয়ে বাধা দিয়ে বৰ্তমান সময়ত মুছলমান বিৰোধী কাৰ্যকলাপে কৰি আছে সেই কথা সাংসদগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কি ক'লে ভাষণত শুনাব বিচাৰিম इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है झूठ है और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए अध्यक्ष महोदय मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू अपने पक्ष रखा और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है वो है भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है
और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना, और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल, भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? और ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड वो और कमजोर हो, और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है 7% से 5% इन्होंने घटा दिया। मेरा सुझाव, हमारे तरफ से यह सुझाव है कि 7% से 5% घटाने के बजाय आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। या सिर्फ इसी बिल में है या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी युवापा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को अब आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग
जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge, to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है. तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है. जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है